دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے شمشان کہانی کی پچھلی قسط میں سنا کہ کس طرح عمران کو بدرو نے مجبور کر دیا کہ وہ جادوگرنی کی کھوپڑی کے پاس جائے اور اس کا طلسمی پتلا نکال کر لے آئے۔ اب عمران بیچارہ چاروں ناچار اس سرنگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے عمران کے ساتھ کیا بیتی جانیے اس قسط میں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے کہانی شمشان کا تیسرا حصہ۔ سرنگ کی ڈھلان شروع ہو گئی تھی۔ عمران کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین کے اندر جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا نیم آلود فضا جلی ہوئی ہڈیوں کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد سرنگ کی دیوار آ گئی، جیسے سرنگ بند ہو گئی ہو، مگر بدرو نے عورت نے کہا تھا کہ اس دیوار میں ایک خفیہ دروازہ ہوگا، تم اسے کھول کر تہخانے میں جاؤ گے۔ عمران غور سے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک جگہ سے مٹی کھرچی تو نیچے سے دروازے کا ایک پٹ نظر آیا۔ دیوار کو ہاتھ لگاتے وقت بھی اسے بجلی کے ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے دھکا دے کر دروازے کو کھول دیا۔ اندر ایک تنگ و تاریک تہخانہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی عورت بین کرتی اس کے قریب سے گزر گئی ہو۔ اس ڈرا دینے والی آواز نے عمران پر تھوڑی دیر کے لیے دہشت سی طاری کر دی، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور تہخانے میں داخل ہو گیا۔ اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ بدرو عورت کے بیان کے مطابق تہخانے کے وسط میں سیاہ پتھر کا ایک چھوٹا سا چبوترا ہے، جس پر سرخ چادر میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی ہے۔ تہخانے میں داخل ہونے کے بعد عمران کو بجلی کے ہلکے ہلکے جھٹکے مسلسل لگ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جادوگر کنڈلا کے طلسم کا اثر ہے، جو اس سے زیادہ نقصان اسے نہیں پہنچا سکتا۔ وہ چبوترے کے قریب آ کر سرخ چادر میں سے پاؤں تک لپٹی لاش کو دیکھنے لگا۔ اس لاش کے اندر وہ طلسمی پتلا تھا جس میں بدرو عورت کی طاقت کا راز بند تھا اور جسے عمران لینے آیا تھا تاکہ طلسمی پتلا بدرو عورت کے حوالے کر کے اسے اپنا پیچھا چھڑائے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمران پر وہاں پھونکے گئے خطرناک جادوگر کنڈلا کے کالے جادو کا وہ ہلاکت خیز اثر نہیں ہو رہا تھا جو کسی دوسرے شخص پر ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمران لاش کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اسے پسینہ آ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پہنچا۔ رومال کو جیب میں رکھا، ایک گہرا سانس لے کر اپنے حواس معمول پر لانے کی ناکام کوشش کی۔ پھر اس نے آہستہ سے لاش کے اوپر ڈالی ہوئی سرخ چادر کو ہاتھ سے چھوا۔ اس کو ایک جھٹکا لگا، ساتھ ہی کسی عورت کے بین کرنے اور رونے کی دل دہلا دینے والی آواز اس کے قریب سے ہو کر دور نکل گئی۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ 2-4 سیکنڈ کے لیے بالکل پتھر کا بت بن کر کھڑا رہا، مگر وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ اسے ہر حالت میں مکمل کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس نے جھٹکوں کی پرواہ کیے بغیر لاش پر سے سرخ چادر ہٹا دی۔ کیا دیکھتا ہے کہ چادر کے نیچے لاش کا ڈھانچہ پڑا ہے۔ لاش کی کھوپڑی بالکل سیدھی تھی اور اس کی آنکھوں کے سوراخوں میں 2 انگارہ آنکھیں اس کو جیسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھیں۔ عمران نے لاش کی کھوپڑی پر سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ بدرو عورت نے کہا تھا کہ یہ لاش کسی معمولی عورت کی نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کی سب سے خطرناک جادوگرنی کی لاش ہے۔ لاش کے ڈھانچوں کی پسلیوں کے نیچے اسے چھوٹا سا کالا ڈبہ رکھا نظر آیا۔ اس کالے ڈبے میں بدرو عورت کا طلسمی پتلا تھا۔ عمران نے ابھی تک لاش کے ڈھانچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ قدرتی طور پر وہ ڈھانچے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہا تھا، مگر لاش کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائے بغیر وہ طلسمی پتلے والا ڈبہ نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت حوصلے کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے لاش کی پسلیوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے ڈھانچے کی پسلیوں میں ہاتھ ڈالا، لاش میں ایک حرکت پیدا ہوئی، ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور عورت کے ڈھانچے کے ہاتھ نے ایک دم سے عمران کی کلائی پکڑ لی۔ عمران کے حلق سے دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ لاش کے ہڈیوں والے ہاتھ میں اس قدر طاقت تھی کہ جیسے عمران کا ہاتھ لوہے کے شکنجے میں آ گیا ہو۔ خوف و دہشت کے مارے اس کے حلق سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ لاش کا ہاتھ عمران کو اپنی زبردست طاقت کے ساتھ اپنی کھوپڑی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس دوران لاش کی کھوپڑی کا جبڑا آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہونے لگا تھا، جیسے وہ عمران کو کھا جانے کے لیے بےتاب ہو۔ کھوپڑی کے جبڑے کی دونوں جانب سے خون کی لکیریں بہنے لگی تھی۔ عمران نے چیخ مار کر زور سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس کی کلائی لاش کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ عمران نے طلسمی پتلے کو لعنت بھیجی، اپنی جان بچا کر تہخانے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ چھلانگ لگا کر تہخانے کے دروازے سے نکل کر سرنگ میں آ گیا اور دیوانہ وار تنگ و تاریک سرنگ میں دوڑتا چلا گیا۔ سرنگ سے باہر آتے ہی وہ دہشت اور خوف کی وجہ سے قد آدم جھاڑیوں کے پاس گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کتنی دیر تک وہ رات کی تاریکی میں جھاڑیوں کے پاس زمین پر آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید تہخانے والی جادوگرنی کی لاش کسی نہ کسی شکل میں
उसको सजा देने जरूर आएगी, और अगर वो ना आई तो बदरू औरत जरूर आएगी, ताकि तहखाने में उसका तिलिस्मी पुतला ना लाने की वजह से उसे वहीं जमीन में जिंदा दफन कर दे। मगर जब इमरान को जमीन पर लेटे लेटे 10-15 मिनट गुजर गए और बदरू औरत और जादूगरनी की लाश में से कोई भी ना आया, तो इमरान आहिस्ता से उठा। उसका सर भारी हो रहा था। उसने सुरंग के धाने की तरफ देखा। पत्थर की जो सिल सुरंग के धाने से हटकर उसने दीवार के साथ एक तरफ करके लगा दी थी, वो न जाने किस तरह वापस अपनी जगह पर आ गई थी और सुरंग का खुफिया दहाना बंद हो गया था। इमरान को इत्मीनान हुआ कि कम से कम सुरंग के अंदर वाली जादूगरनी की लाश से तो पीछा छूटा। वो तेज तेज कदम उठाता खंडर के सैन से बाहर आया। उसकी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो जितनी तेजी से निकल सकता था उस आसेब ज़्यादा खंडर के माहौल से दूर निकल गया। शहर की तरफ जाने वाली सड़क रात के अंधेरे में सुनसान पड़ी थी। वो पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा था और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। शहर की रोशनियां भी काफी दूर थी। सड़क तारीकी में डूबी हुई थी। अचानक मोटरसाइकिल की हेडलाइट की तेज रोशनी सड़क पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। उस औरत के दोनों बाजू खुले थे। बाजुओं और जिस्म पर कपड़ों के चीथड़े लटक रहे थे। सर के बाल खुले थे। ये औरत एकदम से खुदा जाने कहां से आकर सड़क के बीच में मोटरसाइकिल से चंद फीट के फासले पर खड़ी हो गई थी। इमरान ने घबराकर ब्रेक लगाई, मगर उस दौरान उसकी मोटरसाइकिल औरत से टकराकर आगे निकल गई। उसे औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। मोटरसाइकिल रुक गई थी। इमरान ने धड़कते हुए दिल के साथ पीछे देखा। ये देखकर उस पर दहशत तारी हो गई कि वही औरत बिल्कुल सही हालत में उसी तरह सड़क के दरमियान में उसकी तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके दोनों बाजू खुले थे। अब उसके हलक से बैन करने और रोने की रोंगटे खड़े कर देने वाली दबी दबी आवाजें निकल रही थी। औरत ने किसी चुड़ैल की आवाज में इमरान को अपनी तरफ बुलाया। इमरान मेरे करीब आओ, इमरान मेरे करीब आओ। मोटरसाइकिल का इंजन अभी तक चल रहा था। इमरान ने मोटरसाइकिल को फर्स्ट गियर में डाला और तूफानी रफ्तार के साथ मोटरसाइकिल को निकाल कर ले गया। कभी वो सोचता कि यह बदरू औरत ही थी, कभी ख्याल आता कि हो सकता है यह तहखाने वाली जादूगरनी की लाश थी जो जिंदा औरत का रूप बदलकर उसे पकड़ने आ गई हो। वो बहुत जल्द उस उजाड़ वीरान इलाके से निकलकर शहर के इलाके में आ गया। शहर की रोशनियां देखकर उसका खौफ आधे से ज्यादा दूर हो गया और वो अपने अंदर एक तवानाई सी महसूस करने लगा था। वहां से वो सीधा अपनी कोठी की तरफ हो गया। कोठी से कुछ दूर उसने मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया और उसे दोनों हाथों से चलाता हुआ कोठी के अकबी दरवाजे में से लॉन में दाखिल हुआ और उसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी कर दी और दबे पांव चलता अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसे फिर कुछ खौफ महसूस होने लगा। उसे यकीन था कि बदरू औरत उसको तिलिस्मी पुतला ना लाने के जुर्म में जरूर अजियतनाक सजा देगी। खौफ के मारे उसने कमरे की बत्ती भी रोशन न की और कपड़े भी न बदले। उसी तरह अपने बिस्तर में घुसकर लेट गया। कमरे की फजा पर सन्नाटा छाया हुआ था। दीवार पर लगे हुए क्लॉक की हल्की हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी। इमरान आंखें खोले खिड़की की तरफ देख रहा था। खिड़की खुली हुई थी, पर्दा गिरा हुआ था। उसे हर लम्हा यही धड़का लगा हुआ था कि बदरू औरत किसी भी वक्त खिड़की में नमदार होकर उसको अजियतनाक अपनी तिलिस्मी लहरों के अजाब में जकड़ देगी। लेकिन न जाने क्या बात थी कि वो बदरू औरत ना आई और रात के किसी लम्हे इमरान सो गया। दूसरे रोज कॉलेज में इमरान की रुखसाना से मुलाकात हुई तो रुखसाना उसका उतरा हुआ चेहरा देखते ही समझ गई थी कि रात को फिर कोई बात हुई है। जब उसने इमरान से इस बारे में पूछा तो इमरान बोला, कॉलेज टाइम के बाद तुम मेरे साथ चलना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रुखसाना ने फिक्रमंदी से पूछा, खैरियत तो है ना? इमरान बोला, खैरियत कैसे हो सकती है रुखसाना, मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने सिवाय तुम्हारे अपनी मुसीबत का जिक्र अभी तक किसी से नहीं किया। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रुखसाना बोली, तुमने मुझे परेशान कर दिया है, कुछ बताओ तो सही। क्या रात को फिर वही बदरू आई थी? कहीं तुम उसका तिलिस्मी पुतला लेने वीरान खंडर में तो नहीं चले गए थे? इमरान ने ठंडे सांस भरकर कहा, कॉलेज टाइम के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कॉलेज में अपने पीरियड खत्म करने के बाद इमरान रुखसाना के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया। रुखसाना खुद ड्राइव कर रही थी। उसने पूछा, कहाँ चलकर बैठे? इमरान उदास था, कहने लगा, किसी ऐसी जगह चलो जहां हमें कोई देख ना सके। रुखसाना बोली, ठीक है, कोई ऐसी जगह तलाश कर लेते हैं। जिस वक्त वो दोनों कॉलेज से निकले थे तो आसमान पर बादल छा रहे थे और सर्द हवा चलने लगी थी। अभी वो शहर की सड़कों पर ही से गुजर रहे थे कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रुखसाना ने गाड़ी के वाइपर्स ऑन कर दिए और कहा, बारिश आ गई है, अब तो हमें किसी रेस्टोरेंट में ही बैठना पड़ेगा। इमरान ने कहा, नहीं, वहाँ कोई ना कोई हमारी बातें सुन सकता है। तो फिर कहाँ चलें? रुखसाना ने पूछा। इमरान बोला, मकबरा नूर जहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, मकबरे के अंदर किसी जगह बैठ जाएंगे। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस किस्म की बातों के लिए किसी मकबरे से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती, चलो नूर जहाँ के मकबरे पर ही चलते हैं। और उसने कार का रुख मकबरा नूर जहाँ की तरफ डाल दिया। बारिश उसी तरह बूंदाबांदी की शक्ल में हो रही थी।
उन्होंने गाड़ी एक जगह पार्किंग में खड़ी की और मकबरे के अंदर एक अलग थलग जगह पर आकर बैठ गए। रुखसाना ने पूछा, अब मुझे बताओ क्या बात हुई है और तुम इतने परेशान क्यों हो? इमरान ने गहरा सांस लेकर कहा, रात में बदरू औरत का तिलिस्मी पुतला लेने वीरान खंडर में गया था। यह सुनकर रुखसाना हैरान सी होकर इमरान का मुंह देखने लगी। उसने सरजनश करने के अंदाज में कहा, यह हिमाकत तुमने क्यों की? इसका मतलब है कि तुम खुद उस बदरू को अपने सर पर सवार करवा रहे हो। इमरान बोला, मैं क्या करूं रुखसाना, उस औरत ने मुझे अपने काले जादू में जकड़ रखा है। मैं हरगिज वहां नहीं जाना चाहता था, मगर आधी रात को जैसे कोई जादुई ताकत मुझे बेडरूम से निकालकर जबरदस्ती वहां ले गई। फिर क्या हुआ? रुखसाना ने तशवीश से पूछा। इमरान ने कहा, वहां मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो वहां से जिंदा बचकर नहीं आ सकता था। माय गॉड, रुखसाना के होठों से अपने आप निकल गया। इमरान, तुम क्यों मुसीबतों को दावत दे रहे हो? मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वीरान खंडर में ना जाना, तुम फिर भी चले गए। क्या तुम बदरू का तिलिस्मी पुतला ले आए हो? इमरान ने नफी में सारी लाते हुए परेशान आवाज में कहा, नहीं। और उसके बाद इमरान ने अपने साथ रात के वक्त वीरान खंडर में जो कुछ बीती थी वो सारी भयानक सरगुज़श्त रुखसाना को बयान कर दी। रुखसाना ने हैरत और खौफ के मिले जुले एहसासात के साथ इमरान की कहानी सुनी। जब इमरान चुप हो गया तो रुखसाना ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, इमरान, मुझसे वादा करो कि अब तुम कभी उस वीरान खंडर में नहीं जाओगे, बल्कि जो सड़क उस खंडर की तरफ जाती है तुम उस सड़क के करीब से भी नहीं गुजरोगे। इमरान ने खाली खाली नजरों से रुखसाना की तरफ देखा और बोला, रुखसाना, तुम उस बदरू औरत की शैतानी ताकत से वाकिफ नहीं हो। वो क्या कुछ कर सकती है तुम्हें उसका हल्का सा भी अंदाजा नहीं है। रुखसाना ने परेशान होकर कहा, लेकिन ये भी तो सोचो कि मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से वाबस्ता है। हमारी शादी होने वाली है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी। इमरान ने जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो, मैं खुद भी वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं? उस बदरू ने मुझे अपने काले जादू में जकड़ रखा है। मैं ना चाहते हुए भी उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर हूं। रुखसाना बोली, ये सब तोहमात हैं इमरान, ये सब बदरूहें, चुड़ैलें और जादू टोने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कंप्यूटर और खलाई दौर के जदीद साइंसी जमाने में रह रहे हैं। ये भी तुम्हारा अपना वहम है कि उस बदरू ने तुम्हें अपने जादू में काबू कर रखा है। इंसान को कुदरत ने बड़ी ताकत दी हुई है। उसे खुदा ने तमाम मखलूकात से आला दर्जा अता किया हुआ है। अगर हम इन तोहमात के चक्कर में आकर इन बातों पर यकीन करने लगे तो हमारी आला साइंसी तालीम का फायदा ही क्या हुआ? रुखसाना की बातों ने इमरान के अंदर की ताकत को जैसे बेदार कर दिया। वो भी सोचने लगा कि वाकई रुखसाना ठीक कहती है, ये महज तोहमात का शैतानी खेल है और इसे उन बातों से बाहर निकलकर अपने अशरफुल मखलूकात होने के मकाम को बरकरार रखना चाहिए। वो रुखसाना की तरफ पुरुमीद निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, शायद तुम ठीक कह रही हो। कभी कभी खुद मुझे भी ख्याल आता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ और हो रहा है उसमें जरा भर भी हकीकत नहीं है और महज मेरे कमजोर ज़हन ने मुझे इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। बिल्कुल यही बात है, रुखसाना ने जोर देकर कहा। इंसान अगर मनफी अंदाज में सोचने लगे तो शैतान उसके दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है और उसे अक्ल की राह से भटकाने की कोशिश करता है। तुम कमजोर आदमी नहीं हो, तुम्हारी सोच कभी मनफी नहीं रही। तुम्हें अपने खुदा पर और फिर अपने आप पर भरपूर एतमाद रखना चाहिए। मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ कि ये बदरूहें अगर इनका कोई हवाई वजूद है भी तो तुम्हारे नजदीक भी नहीं फटक सकेंगी। बस अब सब कुछ भूल जाओ और यकीन करो कि तुम कमजोर ख्यालात के गलबे के वक्त मनफी शैतानी लहरों के असर में आ गए थे, जो अब तुमसे हजारों मील दूर हो चुकी हैं और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, रुखसाना, तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर फिर से बहादुरी और जुर्रत से जिंदा रहने की ताकत भर दी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ख्वाह कुछ भी हो जाए मैं अब कभी वीरान खंडर का रुख नहीं करूंगा। इसी असना में बाहर बारिश मूसलाधार होने लगी थी। रुखसाना और इमरान मकबरे के अंदर जहां बैठे थे वहां से आगे सुर्ख पत्थर का बरामदा था। बरामदे के आगे सहन था जहां से रेलवे लाइन का सिग्नल और गिरती बारिश की बौछारें उन्हें नजर आ रही थी। जैसे ही इमरान ने कहा कि मैं अब कभी वीरान खंडर का रुख नहीं करूंगा, बाहर बादलों में बिजली गूंजदार धमाके से कड़क कर चमकी और इमरान ने बदरू औरत को अचानक इमारत के बरामदे में नमूदार होते देखा। वो हवा में तैरती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी लहू रंग सुर्ख आंखों से इमरान को गजबनाक नजरों से घूरते हुए बोली, मैं देखती हूं कि तुम कैसे वीरान खंडर में मेरा पुतला लाने नहीं जाते। इमरान का रंग दहशत के मारे जर्द हो गया। बदरू औरत का जिस्म स्याह था, उसके बाल बिखरे हुए थे, सुर्ख आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। इमरान की हालत देखकर रुखसाना ने घबराकर पूछा, इमरान क्या हुआ? तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? इमरान ने कपकपाते होंठों से कहा, वो फिर आ गई है। कौन आ गई है? रुखसाना ने पूछा। इमरान ने इमारत के सतूनों की तरफ इशारा किया और कहा, वही बदरू औरत, वो देखो, वो मेरे सामने खड़ी है।
रुखसाना ने सतूना की तरफ देखा, उसे वहां कोई औरत नजर न आई तो उसने कहा, वो वहां मौजूद है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बदरू औरत ने एक मकरू कहका लगाया और बोली, मुझे सिवाय तुम्हारे कोई नहीं देख सकता, सिवाय तुम्हारी मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता। याद रखो इमरान, मैं उस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे मेरा तिलिस्मी पुतला नहीं ला कर देते, क्योंकि दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो वहां से मेरा पुतला ला सकता है। इमरान ने हकलाते हुए कहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। बदरू औरत ने चीख मारकर कहा, मैं तुम्हारी कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें वहां से भी खींच कर ले आऊंगी। इमरान ने तैश में आकर कहा, तुम जाओ जहन्नम में, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारा पुतला लाने। तुम मुझे मारना चाहती हो तो बेशक मार डालो। बदरू औरत का स्याह मकरू जिस्म थर थर कांपने लगा। उसने गीजो गजब के आलम में हलक से एक ऐसी डरावनी आवाज निकाली कि अगर वो आवाज इमरान के पास बैठी रुखसाना सुन लेती तो बेहोश हो जाती, मगर वो बदरू को ना देख सकती थी और ना उसकी आवाज सुन सकती थी। बदरू औरत ने अपना स्याह हाथ इमरान की तरफ करके जोर से झटका और उसकी उंगलियों के छुरियों से ऐसे नाखूनों से चमकती बिजली की लहरें निकलकर इमरान के जिस्म से लिपट गई। इमरान जमीन से 5 फीट ऊपर उछलकर गिरा और उसका जिस्म फर्श पर बुरी तरह तड़पने लगा। उसके हलक से अजीब डरावनी आवाजें निकलने लगी। रुखसाना ने उसको संभालने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, उसे भी एक शदीद झटका लगा और वो दूर जा गिरी और फटी फटी आंखों से इमरान को तड़पते हुए देखने लगी। बदरू औरत बार बार चीख मार मार कर अपने स्याह हाथों को झटक रही थी और उसके उंगलियों के नोकीले नाखूनों से बिजली की लहरें कड़क कड़क कर निकल रही थी और इमरान के जिस्म से चिमट रही थी। इमरान बार बार जमीन से उछल उछल कर नीचे गिरा था और दर्द से बिलबिला रहा था। रुखसाना से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। वो एक बार फिर हिम्मत करके इमरान को संभालने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने इमरान को हाथ लगाया, उसे पहले से भी ज्यादा शदीद झटका लगा और वो 3-4 कदम दूर जा पड़ी। बदरू औरत चिल्ला चिल्ला कर इमरान से पूछ रही थी, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? क्या अब भी मेरा हुक्म नहीं मानोगे? इमरान की हालत सख्त खराब हो रही थी। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, मानूंगा, मैं तुम्हारा हुक्म जरूर मानूंगा। बदरू औरत ने एक फातिहाना मकरू कहका लगाया और चीख कर कहा, तुम कल आधी रात के बाद एक बार फिर मेरा पुतला लेने वीरान खंडर में जाओगे। मैं जरूर जाऊंगा, इमरान ने नीम बेहोशी के आलम में कहा। उसके जिस्म से लिपटी हुई बिजलियां गायब हो गई थी। उसका जिस्म का तड़पना बंद हो गया था। बदरू औरत बोली, तुम कल रात मेरा पुतला लाने जाओगे और इसी जगह लाकर मुझे दोगे, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। इमरान ने नखात के साथ कहा, जादूगरनी की लाश ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा था, वो मुझे खा जाना चाहती थी। बदरू औरत ने गुर्राहट के साथ कहा, अब वो ऐसा नहीं कर सकेगी। कल आधी रात के बाद मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। और बदरू औरत गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद इमरान आहिस्ता से उठकर बैठ गया। उसके बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। रुखसाना लपक कर उसके पास रुकी और उसके बाजू को सहलाते हुए बोली, इमरान, ये तुम्हें क्या हो गया था? इमरान ने आंखें उठाकर रुखसाना की तरफ देखा। इमरान की आंखें लहू की तरह सुर्ख हो रही थी। वो डर कर पीछे हट गई। इमरान, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? इमरान के जिस्म की ताकत अब वापस आ गई थी। उसने अपनी आंखों की हथेलियों से मसलते हुए कहा, मेरी आंखों से गर्मी सी निकल रही है। रुखसाना ने कहा, तुम्हारी आंखें लाल अंगारों की तरह सुर्ख हैं। इमरान जल्दी जल्दी आंखें झपकने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों की लहू जैसी लाली गायब हो गई। रुखसाना ये सब कुछ देखकर हैरत में गुम थी। कहने लगी, इमरान, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इमरान बोला, कुछ ठीक हूँ। इमरान, रुखसाना बोली, तुम जमीन से उछल उछल कर ऐसे तड़प रहे थे जैसे तुम्हें कोई चाबुके मार रहा हो। इमरान ने अपने बाजू को दबाते हुए कहा, काश तुम देख सकती कि मेरे जिस्म के साथ जो बिजली की लहरें चिमटी हुई थी वो मुझे सांप बनकर डस रही थी, मगर मुझे तो कोई ऐसी शय नजर नहीं आ रही थी। रुखसाना ने कहा। इमरान बोला, जिस तरह तुम बदरू को नहीं देख सकती थी और उसकी आवाज नहीं सुन सकती थी, उसी तरह तुम्हें मेरे जिस्म से टकराती बिजली की लहरें भी नजर नहीं आ रही थी। रुखसाना कहने लगी, इमरान, मुझे तो ये सब कुछ तुम्हारी नफ्सियाती प्रॉब्लम मालूम होती है। इमरान ने रुखसाना का हाथ पकड़ लिया और बोला, यकीन करो रुखसाना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बदरू औरत यहाँ मौजूद थी। उसने मुझे कल रात फिर वीरान खंडर में जाने का हुक्म दिया है। रुखसाना ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। इमरान ने सर्द आह भरकर गर्दन एक तरफ डाल दी और कहा, नहीं रुखसाना, इस बार मुझे जाना ही होगा। मैं जानता हूं कि वो इस वक्त तक मेरी जान नहीं ले सकती जब तक कि मैं उसका पुतला लाकर नहीं दे देता, लेकिन अगर मैंने उसका हुक्म ना माना तो मुझे जमीन में कुछ दिनों के लिए जिंदा ही दफन कर देगी, लेकिन वो तुम्हें भी जरूर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मुझे उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। रुखसाना ने कहा, अगर तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है और तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम पर किसी आसेब का साया हो गया है और मेरे पास उसका इलाज है। क्या मतलब? इमरान ने रुखसाना की तरफ देखकर कहा। वो बोली, मैं एक बुजुर्ग को जानती हूँ, वो बड़ा नेक आमिल है और अल्लाह के पाक कलाम से दुखी लोगों की खिदमत करता है और उन्हें बीमारियों और तोहमात से निजात दिलाता है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगी, वो तुम्हें
इस बदरू से निजात दिला देगा। इमरान के दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई। उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, रुखसाना ने कहा। बुजुर्ग आमिल अल्लाह का नेक बंदा है, वो किसी से कुछ नहीं लेता, बस दुखी लोगों की खिदमत को ही अपना फर्ज समझता है। इमरान ने कहा, फिर हम मम्मी डैडी को भी साथ ले चलेंगे। रुखसाना बोली, नहीं, डैडी मम्मी से बदरू के असेब का जिक्र किया तो वो परेशान हो जाएंगे, मम्मी तो बहुत ज्यादा परेशान होगी। ठीक है, इमरान ने कहा, मैं उनसे जिक्र नहीं करूंगा, तुम आज ही मुझे बुजुर्ग आमिल के पास ले चलो, शायद अल्लाह मियाँ उस बुजुर्ग के वसीले से मेरे गुनाह माफ फरमा दे। रुखसाना ने इमरान को साथ लिया और मकबरे की इमारत से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त तक बारिश थम चुकी थी। रुखसाना सबसे पहले इमरान के साथ उसके घर आ गई। इमरान की मम्मी डैडी से मिली, मगर उन्हें इमरान के बारे में कुछ न बताया कि उसके साथ मकबरा नूर जहां में क्या बीती थी। रुखसाना ने इमरान की मम्मी से कहा, आंटी, इमरान मेरे साथ जा रहा है, मैंने एक रेस्टोरेंट में अपने कॉलेज के दोस्तों को पार्टी दी है, शायद इमरान को मेरे साथ वहां देर हो जाए। मम्मी ने कहा, बेटा ज्यादा देर न करना। इमरान बोला, मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप फिक्र न करें। रुखसाना वहां से इमरान को अपने घर ले गई। वहां से उसने बुजुर्ग आमिल को फोन किया और कहा, कादरी साहब, मैं आपकी खिदमत में अपने मंगेतर को लेकर हाजिर होना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से बुजुर्ग आमिल ने कहा, बीबी बेशक आ जाओ। रुखसाना ने बुजुर्ग आमिल का शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया। इमरान से कहा, हमें इसी वक्त कादरी साहब की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। मैं तैयार हूँ, इमरान बोला, और वो गाड़ी में बैठकर बुजुर्ग आमिल के मकान की तरफ चल पड़े। उनका सादा सा मकान एक क्वार्टर की शक्ल में था। बुजुर्ग आमिल दरी पर गाँव तकिए के सहारे बैठे थे। एक तरफ चौकी पर रखे गुलदान में 3-4 अगरबत्तियां सुलग रही थीं। उस वक्त उनके पास दूसरा कोई शख्स नहीं था। रुखसाना और इमरान सलाम करके बड़े अदब से बुजुर्ग आमिल के सामने बैठ गए। रुखसाना ने इमरान का तारुफ करवाते हुए बुजुर्ग आमिल को बदरू औरत के असेब की पूरी कहानी बयान कर दी। बुजुर्ग आमिल ने तमाम वाकयात को बड़े गौर से सुना, फिर संदूकची में से एक तावीज़ निकाल कर इमरान के दाएं बाजू पर बांधा और कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है बेटा, जब तक ये तावीज़ तुम्हारे बाजू के साथ बंधा रहेगा तुम्हें कोई बदरू, कोई बला नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, बल्कि तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकेगी। बस इस तावीज़ को कभी अपने बाजू से अलग ना करना। इमरान बोला, कादरी साहब, मैं इसे हर वक्त बाजू पर बांधे रखूंगा। रुखसाना ने बुजुर्ग आमिल का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके दोनों अदब से उठे और वहां से बाहर आ गए। बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए रुखसाना ने कहा, अब इस तावीज़ की हिफाजत करना, इसे किसी हालत में भी अपने से अलग ना करना। बिल्कुल नहीं करूंगा, इमरान ने जवाब दिया। शायद इसमें इमरान की नफ्सियात का भी दखल था कि बुजुर्ग आमिल के बांधे हुए तावीज़ के साथ ही उसके दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। उसे यकीन था कि ये अल्लाह के पाक नाम वाला तावीज़ है और अब बदरू औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बदरू औरत ने इमरान को उसी रात 12 बजे के बाद वीरान खंडर में जाने को कहा था ताकि वो उसे उसका तिलिस्मी पुतला लाकर दे सके। बदरू औरत ने इमरान को यह भी कहा था कि मैं आधी रात के बाद वीरान खंडर से कुछ फासले पर मौजूद होंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। चुनाचे जब रात आधी गुजर गई तो बदरू औरत अपने आसेबी खंडर से बाहर निकल आई। वो अपने असल डरावने रूप में थी। उसका जिस्म स्याह था, सर के बाल झाड़ियों की तरह उलझे हुए थे, आंखों के गड़ों में सुर्ख आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके स्याह हाथों के नाखून छुरियों की तरह बाहर को निकले हुए थे। अपने आसेबी खंडर से निकलने के बाद उसने चारों तरफ निगाह डाली। उस वक्त उसे सिवाय इमरान के दूसरा कोई नहीं देख सकता था। बदरू औरत हवा में उड़ने लगी और अंधेरी रात में शहर के ऊपर से उड़ती आबादी से दूर उस जानिब निकल गई जिधर वीरान खंडर था। वो वीरान खंडर के करीब नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके दुश्मन कुंडला जादूगर ने वीरान खंडर के इर्द गिर्द खतरनाक तिलिस्म का हिसार खींच रखा था। उस तिलिस्म की लहरें बदरू औरत के जिस्म को उछाल कर 1 मील दूर फेंक सकती थी। वो मर नहीं सकती थी क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन कुंडला जादूगर ने उसको हलाक करने के बाद अपने जादू की ताकत से ऐसी हालत में रखा हुआ था कि ना वो जिंदा थी और ना मुर्दा थी। जादूगर कुंडला उसे पूरी तरह मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने बदरू औरत कजली को पूरी तरह से भस्म कर दिया तो उसकी बदरू उसके जिस्म से निकलकर उसको सख्त नुकसान पहुंचाएगी और हो सकता है कि उसे हलाक भी कर डाले। यही वजह थी कि कुंडला ने वीरान खंडर के इर्द गिर्द सैकड़ों बरस से ऐसे खतरनाक तिलिस्मी हिसार खींच दिया हुआ था कि जिसकी तिलिस्मी शुआएं दूसरे इंसानों को तो हलाक कर सकती थी, मगर बदरू औरत को शदीद झटकों से वहां से सैकड़ों मील दूर फेंक सकती थी। आम इंसानों में से सिर्फ इमरान ऐसा नौजवान था जिस पर कुंडला की तिलिस्मी शुआएं बेअसर हो जाती थी, क्योंकि इमरान के बाजू पर चांद ग्रहण के ऊपर नीचे 2 दायरों के निशान थे जो करोड़ों इंसानों में से किसी एक के बाजू पर ही होते हैं, और चांद ग्रहण के उस निशान की वजह से इमरान पर कुंडला की तिलिस्मी लहरें बेअसर हो गई थी। बदरू औरत तिलिस्मी पुतले वाले खंडर से कुछ दूर एक दरख्त के पास आकर खड़ी हो गई
उसे यकीन था कि इमरान तिलिस्मी पुतला निकालने जरूर आएगा, क्योंकि मकबरा नूर जहां में बदरू औरत ने इमरान को इतनी खौफनाक अजियत दी थी कि उसके बाद वो कभी नहीं रुक सकता था। बदरू औरत इमरान का बेचैनी से इंतजार कर रही थी, मगर इमरान का दूर दूर तक नामो निशान तक दिखाई नहीं देता था। बदरू औरत का गुस्सा ग़ीज़ो गज़ब की सूरत इख्तियार करता जा रहा था। जब काफ़ी देर गुजर गई और इमरान ना पहुंचा तो बदरू औरत आग बगुला होकर फ़ज़ा में बुलंद हुई और तेज़ी से उड़ती हुई इमरान के बंगले पर आ गई। इमरान के बेडरूम की खिड़की बंद थी, मगर अंदर रोशनी हो रही थी। इमरान जाग रहा था। वो जानता था कि जब वो वीरान खंडर में नहीं पहुंचेगा तो बदरू औरत गजबनाक होकर उसके बंगले पर ज़रूर आएगी। लेकिन इमरान को इत्मीनान था कि उसने अपने बाजू पर तावीज़ बांध रखा है, जिसकी वजह से बदरू औरत उसके करीब भी नहीं फटक सकेगी। वो कमरे की बत्ती रोशन किए किताब पढ़ रहा था, लेकिन बार बार दीवार पर लगे क्लॉक पर वक्त देख लेता था। रात का 1:15 बज चुका था। इमरान को मालूम था कि बदरू औरत किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकती है। ठीक उसी वक्त बदरू औरत इमरान के बेडरूम की बंद खिड़की के बाहर पहुंच चुकी थी। खिड़की की रोशनी देखकर वो समझ गई कि इमरान अंदर ही है। उसकी आंखों से गुस्से के मारे चिंगारियां फूटने लगी। वो एक तूफानी झोंके की तरह बंद खिड़की में से कमरे में दाखिल हो गई। जैसे ही वो कमरे में पहुंची उसे एक झटका लगा और वो उलटकर पीछे की तरफ दीवार से जा टकराई। उसके हलक से एक भयानक चीख निकल गई। इमरान ने उसे देख लिया था। खौफ के मारे उसके हाथ से किताब छूटकर गिर पड़ी। अगरचे उसने बाजू पर तावीज़ बांधा हुआ था, उसके बावजूद वो डर रहा था कि कहीं बदरू चुड़ैल औरत उस पर हमला न कर दे। लेकिन जब उसने बदरू औरत को झटका खाकर पीछे दीवार के साथ टकराकर गिरते देखा तो उसे यकीन हो गया कि तावीज़ पर लिखे हुए अल्लाह के पाक नाम की वजह से बदरू औरत अब उसके करीब नहीं आ सकेगी। फिर भी वो सहम कर बिस्तर पर सिमट कर बैठ गया और बदरू औरत को देखने लगा। उसकी खूनी आंखें शोले बरसा रही थी। उसने एक बार फिर इमरान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर पहले से ज्यादा शदीद झटका खाकर खिड़की के बाहर जाकर गिर पड़ी। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस बला से पीछा छूटा, लेकिन ये बला इतनी आसानी से इमरान का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। बदरू औरत की उसे गजबनाक आवाज़ सुनाई दे रही थी। इमरान, मैं समझ गई हूँ कि तुमने मेरे खिलाफ कोई ऐसा अमल कर रखा है जिसकी ताकत मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने दे रही, लेकिन याद रखो मेरा नाम भी कजली है। मैं उस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे मेरा तिलिस्मी पुतला लाकर नहीं दे देते। इमरान सहमा हुआ बिस्तर पर सिमट कर बैठा रहा। उसने कोई जवाब ना दिया। बदरू औरत ने आखिरी बार बंद खिड़की की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इस दफा उसे ऐसी जबरदस्त तपिश का एहसास हुआ जैसे उसके जिस्म को आग लग गई हो। बदरू औरत एक दहशतनाक चीख मारकर वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन इमरान ने रात का सारा खौफनाक वाकया रुखसाना को बताया तो वो बड़ी खुश हुई। कहने लगी, इंशाअल्लाह अब ये बदरू कभी तुम्हें आकर तंग नहीं करेगी और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, लेकिन खुदा के लिए तावीज़ को अपने बाजू से अलग न करना। इमरान बोला, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब ये तावीज़ सारी जिंदगी मेरे बाजू पर बंधा रहेगा। दूसरी तरफ जब बदरू औरत कजली पर यह बात साबित हो गई कि इमरान ने अपने ऊपर किसी आमिल से ऐसा अमल करवा लिया है जिसकी वजह से वो इमरान को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, उसको छू भी नहीं सकती, तो कजली परेशान हो गई। इमरान ही करोड़ों इंसानों में से एक ऐसा इंसान था जो वीरान खंडर से उसका तिलिस्मी पुतला लाकर दे सकता था। उसने इमरान का सैकड़ों सालों तक इंतजार किया था। वो उसे कैसे इतनी आसानी से हाथ से गंवा सकती थी, मगर बदरू औरत इतनी आसानी से हथियार भी नहीं डाल सकती थी। उसके पास एक खुफिया तिलिस्म के 3 मंत्र थे। ये मंत्र जादूगरनियों के खानदानों में नस्ल दर नस्ल से सीना ब सीना चला आ रहा था। इस मंत्र में इतनी ताकत थी कि अगर पहाड़ पर पड़कर फूंका जाए तो एक बार उस पर भी लर्जा तारी हो जाए। बदरू औरत वहां से सीधी अपने आसेबी खंडर में आ गई। गुस्से और तैश के आलम में उसके सारे मकरू जिस्म से चिंगारियां सी फूट रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे एक जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। अगर ये कोई मामूली बात होती तो वो उसे भुला देती, मगर ये उसकी जिंदगी और मौत का मामला था। साल हर साल के इंतजार के बाद एक ऐसा इंसान उसके हाथ लगा था जो उसे उसका तिलिस्मी पुतला लाकर दे सकता था, और उसके बाद ना सिर्फ उसकी ताकत उसे वापस मिल सकती थी, बल्कि उसे जादूगर कुंडला के तिलिस्म की कैद से हमेशा के लिए रिहाई नसीब हो सकती थी। ये इंसान सिर्फ इमरान और सिर्फ इमरान था। वो कैसे गवारा कर सकती थी कि इमरान उसके हाथ से निकल जाए। अगर वो उसके हाथ से निकल जाता है तो फिर न जाने कितने 100 साल तक उसे किसी दूसरे ऐसे इंसान का इंतजार करना पड़े। और ये भी कोई यकीनी बात नहीं थी कि सैकड़ों साल के बाद उसे इमरान जैसा दूसरा इंसान मिले या ना मिले। बदरू औरत हर हाल में इमरान को दोबारा अपने काबू में करना चाहती थी। उस वास्ते उसने अपना वो तिलिस्मी मंत्र इस्तेमाल करने का फैसला किया था जिसको उसने आज तक इस्तेमाल नहीं किया था। बदरू औरत अपने आसेबी खंडर में आते ही चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गई।
غضبناک انداز میں اس نے اپنے دونوں سیاہ بازو پھیلا دیے۔ اس کے حلق سے ایک ڈراؤنی آواز نکلی اور چبوترے پر اس کے ارد گرد آگ کا ایک دائرہ بن گیا۔ آگ کے شعلے فرش سے 2-2 فٹ اوپر لہرا لہرا کر اٹھ رہے تھے۔ ہر شعلے میں کسی نہ کسی بدرو کی ڈراؤنی شکل بن رہی تھی۔ یہ ڈراؤنی شکلیں ایک دوسرے کی طرف چیخ چیخ کر جھپٹ رہی تھی۔ بدرو عورت اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بدرو کے منہ سے چنگاریاں اور آگ کے شرارے نکلنے لگے۔ بدرو نے اپنی آواز اور بلند کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدرو کے منہ سے نکلنے والے شرارے آگ کے شعلوں میں بدل گئے۔ پھر یہ سارے شعلے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو کر ایک شعلہ بن گیا۔ بدرو عورت تیز آواز میں برابر منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے منہ سے نکلنے والے لمبے شعلے نے آگ کے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ شعلہ ایک سانپ بن گیا تھا۔ بدرو عورت نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنے منہ سے نکلتے ہوئے شعلے کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں شعلے کا سانپ تڑپنے اور پیچو تاب کھانے لگا۔ آگ کا سانپ جیسے ہی بدرو عورت کی گرفت میں آیا، اس نے منتروں کا جاپ بند کر دیا۔ اس کے ارد گرد آگ کا دائرہ بھی غائب ہو گیا۔ آگ کا سانپ اس کی گرفت میں ادھر ادھر شعلے کی طرح لہرا رہا تھا۔ کبھی بدرو عورت کے منہ کی طرف لپکتا، کبھی اس کے سر کی طرف لپکتا۔ اس کا پھن کھلا ہوا تھا اور منہ سے پھنکاریں نکل رہی تھی۔ بدرو عورت نے آگ کے سانپ والا ہاتھ بلند کر کے ایک بھیانک آواز نکالی اور غائب ہو گئی۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ شہر کی گلیوں، بازاروں اور باہر جنگل میں دھند پھیلی ہوئی تھی اور دل کو لرزا دینے والا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عین اسی وقت شہر کے مکانوں کے اوپر سے ایک تیز پھنکار جیسی آواز ایسے تیزی سے گزر گئی جیسے کوئی لڑاکا جیٹ ہوائی جہاز گزر گیا ہو۔ یہ بدرو عورت تھی جو عمران کے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے شہر کے مکانوں کے اوپر سے گزری تھی۔ عمران کے بنگلے کے قریب پہنچ کر بدرو عورت خاموشی سے زمین پر اتر آئی۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی، وہ غائب تھی، مگر وہ خود سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی خونی آنکھیں اٹھا کر عمران کے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران سو رہا تھا۔ بدرو عورت مطمئن ہو گئی۔ وہ سوتے میں ہی عمران پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ زمین سے بلند ہو کر عمران کے بیڈ روم کی بند کھڑکی کی طرف بڑھی۔ وہ فضا میں آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آگ کا سانپ اس نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جو لہرا رہا تھا، پھنکار رہا تھا۔ بدرو عورت اسی حالت میں عمران کے بیڈ روم کی کھڑکی میں داخل ہو گئی۔ عمران اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے دائیں بازو پر قمیض کی آستین کے نیچے خدا کے پاک نام والا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ جہاں خدائے بزرگ و برتر کا پاک نام لیا جا رہا ہو، وہاں کسی بدرو، کسی برے خیال کا گزرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ جیسے ہی بدرو عورت عمران کے بیڈ روم میں داخل ہوئی، اس کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ پیچھے کو گری۔ بدرو نے آگ کے سانپ کو عمران کی طرف پھینک دیا۔ آگ کے سانپ کو اس سے زیادہ شدید جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر بدرو عورت کے جسم سے آ کر چمٹ گیا۔ بدرو عورت کے حلق سے دلدوز چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز پر عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بدرو عورت کو غیبی حالت میں بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بدرو عورت کے جسم سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ تڑپ رہی ہے اور تڑپتے تڑپتے وہ بند کھڑکی سے باہر جا پڑی۔ عمران سہم کر اپنے بستر پر بیٹھا بند کھڑکی کے باہر سے آتی بدرو عورت کی چیخوں کی آوازیں سنتا رہا۔ آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ عمران اٹھ کر غسل خانے میں گیا۔ اس نے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بدرو عورت کے حملے سے محفوظ رہی۔ کھڑکی سے باہر گرنے کے بعد بدرو عورت آگ کا شعلہ بن کر ہوا میں ایک طرف کو اوپر ہی اوپر اٹھتی چلی گئی۔ پھر اس نے ایک خاص منتر پڑھ کر پھونکا اور اس کے جسم کی آگ بجھ گئی۔ اپنے آسیبی کھنڈر میں واپس آ کر وہ چبوترے پر گر پڑی۔ یہ اس کی فیصلہ کن شکست تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک عمران کے بازو کے ساتھ خدا کے پاک نام کا تعویذ بندھا ہوا ہے، وہ اس کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکتی۔ مگر وہ یہ تعویذ نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ تو اس تعویذ کی فضا کے قریب بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر سخت اضطراب کے عالم میں چکر کاٹنے لگی۔ آخر اس نے اپنی اس جادوگرنی سہیلی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا جو خواب میں آ کر اس کو مشورے دیا کرتی تھی۔ بدرو عورت وہیں چبوترے پر لیٹ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر نیند کی حالت طاری کر لی۔ اس کے فوراً بعد وہ خواب کی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہ خواب کی دنیا میں ایک دلدلی تالاب کے کنارے ایک سوکھے درخت کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے سامنے تالاب کے دوسرے کنارے پر ایک بدشکل عورت آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ یہ بدرو عورت کی جادوگرنی سہیلی تھی جس کو مرے سینکڑوں سال ہو چکے تھے، مگر جس کی روح جادو ٹونا کرنے کے گناہ کی سزا کے طور پر سینکڑوں سالوں سے بھٹکتی پھر رہی تھی، اور ابھی نہ جانے اسے اور کتنے سینکڑوں ہزاروں سال اسی طرح بدرو بن کر بھٹکتے پھرنا تھا۔ بدرو عورت اپنی سہیلی جادوگرنی کے پاس گئی اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سہیلی جادوگرنی نے کہا، جب تک عمران کے بازو پر خدا کے پاک نام والا تعویذ بندھا ہوا ہے، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اندھیروں کی بدرو ہیں۔ جہاں خدا کے پاک نام کی نورانی روشنی ہوگی، وہاں ہمارا گزرنا ممکن نہیں۔
वहां हमारा वजूद नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मैं हैरान हूँ कि 2 बार इमरान के करीब जाने के बाद अब तक तुम जिंदा कैसे हो। बदरू औरत ने कहा, लेकिन मुझे इमरान को हर हालत में अपने कब्जे में करना है। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके बगैर ना तो मेरी तिलिस्मी ताकत मेरे पास वापस आ सकती है और ना मैं क़यामत तक जादूगर कुंडला की कैद से आज़ाद हो सकती हूँ। मैं तुमसे मदद लेने आई हूँ, मेरी मदद करो। मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसके जरिए मैं इमरान को वीरान खंडर में भेजकर अपना तिलिस्मी पुतला हासिल कर सकूं, क्योंकि इमरान के सिवा कोई दूसरा इंसान वहां से मेरा तिलिस्मी पुतला नहीं ला सकता। जादूगरनी सहेली सोच में पड़ गई। फिर नजरें उठाकर बदरू औरत को देखा और बोली, कजली, इमरान वो तावीज़ हमेशा अपने बाजू के साथ बांध कर रखता है। वो जानता है अगर उसने तावीज़ एक पल के लिए भी उतारा तो बदरू उस पर हमला कर देगी। बदरू औरत ने कहा, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो किसी के कहने पर भी तावीज़ नहीं उतार सकता। सहेली जादूगरनी ने कहा, सिर्फ एक औरत ऐसी है कि जिसके इसरार पर इमरान पल 2 पल के लिए अपने बाजू से तावीज़ उतार सकता है। वो औरत कौन है? बदरू ने जल्दी से पूछा। सहेली जादूगरनी ने कहा, वो औरत इमरान की मंगेतर और महबूबा रुखसाना है। इमरान रुखसाना से मोहब्बत करता है। अगर रुखसाना इसरार करेगी तो इमरान मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर थोड़ी देर के लिए ही सही अपने बाजू से तावीज़ जरूर उतार देगा। बदरू औरत की सुर्ख आंखें और ज्यादा सुर्ख हो गईं। कहने लगी, तुमने मुझे वो बात बता दी है जिसकी तरफ मेरा ख्याल अभी तक नहीं गया था। सहेली जादूगरनी ने कहा, तुम इमरान की महबूबा रुखसाना के जिस्म में दाखिल होकर ये काम खुद रुखसाना बनकर कर सकती हो। बदरू औरत ने आगे बढ़कर सहेली जादूगरनी का हाथ चूम लिया और बोली, मेरी सहेली, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। उसके साथ ही बदरू औरत की नींद खुल गई। वो जल्दी से उठ बैठी और उसने एक मकरूह कहका लगाकर कहा, इमरान, देखती हूँ अब तुम मेरा हुक्म कैसे नहीं मानते और मुझे मेरा पुतला लाकर नहीं देते। उसके साथ ही बदरू औरत गायब हो गई। अब उस बदरू औरत का निशाना रुखसाना थी। बदरू औरत ने रुखसाना को देखा हुआ था। उसे ये भी मालूम था कि वो कॉलेज में इमरान की क्लास फेलो है। रुखसाना के जिस्म में दाखिल होकर उसके जहन पर कब्जा करने के लिए जरूरी था कि रुखसाना के जिस्म पर कुदरती तौर पर उसकी अपनी गलती से जख्म लगे और उस जख्म में से खून निकले। बदरू औरत सिर्फ उस खून के जरिए रुखसाना के जिस्म में हलोल कर सकती थी। वो खुद भी रुखसाना को जख्मी करके उसके जिस्म से खून निकाल सकती थी, लेकिन इस तिलिस्मी अमल के लिए जरूरी था कि रुखसाना को खुद उसकी गफलत की वजह से जख्म लगे। जब दिन काफी निकल आया और इमरान के कॉलेज की क्लासें शुरू हो गईं, तो बदरू औरत सीधी इमरान के कॉलेज में पहुंची। ये वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगरचे वो गायब है मगर इमरान उसे देख सकता है। चुनाचे वो इमरान से दूर रहकर रुखसाना पर अपना तिलिस्मी असर डालना चाहती थी कि वो कोई ऐसी गलती करे कि उसके हाथ या पांव पर कोई चोट लगे और वहां से खून निकलना शुरू हो जाए और बदरू औरत फौरन उस खून के जरिए रुखसाना के जिस्म में हलोल कर जाए। ये काम आसान नहीं था। उसके लिए सब्र की जरूरत थी और ऐसे हालात पैदा करने की जरूरत थी कि रुखसाना किसी चाकू वगैरह से अपनी उंगली पर कट लगाए। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि रुखसाना का बराबर मुशाहिदा किया जाए, उसकी निगरानी की जाए कि जहां कहीं गलती से वो जख्मी हो वहीं बदरू औरत उसे काबू कर ले। इमरान की क्लास लगी हुई थी। बदरू औरत ने क्लास की खिड़की में से देखा, रुखसाना अगली कतार में लड़कियों के साथ बैठी लेक्चर सुन रही थी। इमरान क्लासरूम में नहीं था। वो कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। बदरू औरत क्लासरूम में दाखिल हो गई। जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुई, बड़ी तेज हवा का झोंका बगोले की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगा। लड़कियों और लड़कों के कागजात उड़ गए। सब घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। प्रोफेसर जो लेक्चर दे रहा था वो भी हैरान हुआ कि ये इतनी तेज हवा का बगोला कहाँ से आ गया है, जबकि मौसम बड़ा पुरसकून था। दूसरे ही लम्हे तेज हवा का बगोला गायब हो गया। किसी की समझ में ना आया कि यह सब क्या था। बदरू औरत क्लासरूम में कुछ देर एक तरफ खड़ी रुखसाना की तरफ गौर से देखती रही और उसके जहन पर अपना असर डालती रही। फिर क्लासरूम से निकलकर कॉलेज के लॉन में आकर हवा में इधर उधर परवास करने लगी। उसने दूर से देखा कि कैंटीन में इमरान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बदरू औरत इस ख्याल से कि इमरान उसे देख न ले, कैंटीन से दूर दूर ही रही। जब क्लास खत्म हुई और रुखसाना भी दूसरी लड़कियों और लड़कों के साथ कमरे से निकलकर लॉन में आई, इमरान ने रुखसाना को क्लासरूम से निकलते देखा तो उसके पास आ गया। दोनों लॉन की सीढ़ियों में बैठ गए। रुखसाना ने कहा, आज क्लासरूम में बड़ी अजीब बात हुई। इमरान ने पूछा, क्या हुआ? रुखसाना बोली, हम क्लासरूम में बैठे थे, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था कि अचानक कमरे में हवा का बगोला एक तरफ से आकर चक्कर खाने लगा। कागज उड़ गए, सब घबरा गए, लेकिन एक आध मिनट बाद ही बगोला गायब हो गया। इमरान बड़े गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के आसार नुमायां हो रहे थे। रुखसाना ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये सब क्या था इमरान? इमरान ने गहरी सोच से बाहर आते हुए कहा, रुखसाना, मुझे लगता है कि क्लासरूम में वही बदरू आई थी। रुखसाना के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह बदरू ही थी? मुझे पूरा यकीन है, वो मेरी तलाश में आई होगी, इमरान ने कहा। रुखसाना कहने लगी, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि एक आध मिनट के बाद ही बगोला गायब हो गया था। तुम क्लासरूम में नहीं थे।
बदरू ने जब देखा कि तुम वहां नहीं हो तो वो चली गई। इमरान की निगाहें कॉलेज के लॉन और क्लासरूम के बरामदों का जायजा लेनी थी। कहने लगा, मुझे यकीन है कि वो अभी तक यहीं किसी जगह मौजूद है, मगर सामने नहीं आ रही, क्योंकि वो जानती है कि मैं उसे देख सकता हूँ और मेरे बाजू पर अल्लाह के पाक नाम वाला तावीज़ बंधा हुआ है। वो मेरे करीब नहीं आ सकती। रुखसाना कहने लगी, जब बदरू को मालूम है कि वो तुम्हारे करीब नहीं भटक सकती तो फिर वो कॉलेज में क्या करने आई है? इमरान ने कहा, वो तो मेरे पीछे लगी रहेगी। वो किसी ऐसे मौका की तलाश में है कि मैं किसी वजह से अपने बाजू का तावीज़ थोड़ी देर के लिए उतारूं और वो मुझ पर हमला कर दे। रुखसाना बोली, खुदा के लिए ये तावीज़ अपने जिस्म से हरगिज़ हरगिज़ अलग न करना। इमरान ने कहा, बिल्कुल नहीं करूँगा। रुखसाना कहने लगी, उस बदरू का तुम्हारे पीछे लगना ठीक नहीं है, मैं इसी ख्याल से परेशान हो गई हूँ। इमरान बोला, बदरू मेरे पीछे उस वक्त तक लगी रहेगी जब तक वो मेरे जरिए अपनी ताकत का तिलिस्मी पुतला हासिल करने में कामयाब नहीं हो जाती। रुखसाना परेशान हो गई थी। कहने लगी, हमें बुजुर्ग आमिल से मिलकर कोई ऐसा अमल करना चाहिए कि जिससे ये बदरू हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाए और हमारा उससे पीछा छूटे। इमरान कहने लगा, ये बदरू एक बार मर चुकी है और मरने के बाद अपने बदअमाल और बुतों की परस्तिश की वजह से बदरू बन गई है। वो अब दोबारा नहीं मर सकती। रुखसाना बोली, तो क्या वो तलवार बनकर हमारे सरों पर लटकती रहेगी? इमरान कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं बुजुर्ग आमिल साहब की खिदमत में हाजिर होकर इस बारे में बात करूंगा। दोनों उठकर अपने अपने क्लासरूम की तरफ चल दिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके पीरियड शुरू होने वाले थे। बदरू औरत दूर एक दरख्त की ओट में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। बदरू औरत का टारगेट रुखसाना थी, चुनाचे वो बराबर उसकी निगरानी कर रही थी। वो उस मौका की तलाश में थी कि किसी लम्हे किसी इत्तफाक से रुखसाना को कोई जख्म लगे, उसके जिस्म से खून बहे और वो उस खून के जरिए उसके अंदर हलोल करके उसके जहन पर कब्जा करके उसके जरिए अपना मतलब निकाल ले। उसका मकसद इमरान के बाजू पर बंधा हुआ तावीज़ उतरवाना था और फिर तावीज़ को गायब कर देना और इमरान को अपने काबू में करना था। इस दफ़ा बदरू औरत इमरान को गायब करके उसको ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहां कोई भी शख्स दोबारा उसके बाजू पर दूसरा तावीज़ ना बांध सके और वह इमरान के जरिए अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। कॉलेज से फारिग होने के बाद रुखसाना ने इमरान को अपनी गाड़ी में पहले उसके बंगले पर छोड़ा, फिर अपने बंगले पर आ गई। बदरू औरत बराबर उसके पीछे लगी हुई थी। शाम के वक्त रुखसाना कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के एक बड़े शॉपिंग प्लाजा में आ गई। उसने कार पार्किंग साइड में एक तरफ खड़ी की तो एक काली बिल्ली जो एक तरफ बैठी थी चीख मार कर भाग गई। रुखसाना हैरान हुई कि बिल्ली उसे देखकर चीख मारकर क्यों भाग गई है। उसे मालूम नहीं था कि बिल्ली उसे देखकर नहीं बल्कि उसके साथ जो बदरू खड़ी थी उसको देखकर डर कर भागी थी। जानवर बदरूहों को देख लेते हैं और उनसे डर कर भाग जाते हैं। रुखसाना शॉपिंग प्लाजा में दाखिल हो गई। बदरू औरत गैबी हालत में उसके साथ साथ थी। रुखसाना लेडीज ड्रेस सेक्शन में आकर दीवारों के साथ हैंगरों पर लटके हुए औरतों के मलबूसात को देखने लगी। वो अपने लिए कोई रेडीमेड सूट खरीदना चाहती थी। रुखसाना एक हैंगर को उतारकर रेशमी सूट को देख रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। रुखसाना ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। रुखसाना वहां से कॉस्मेटिक से सेक्शन में आ गई। यहाँ वो लिपस्टिक के मुख्तलिफ शेड देख रही थी कि उसे अपने बिल्कुल करीब किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे तो रुखसाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से पलट कर देखा मगर इस दफा भी उसे अपने पीछे कोई इंसान दिखाई न दिया। अचानक रुखसाना को ख्याल आ गया कि कहीं बदरू औरत उसका पीछा न कर रही हो। उसने शॉपिंग का ख्याल छोड़ दिया और वापस घर जाने के लिए शॉपिंग प्लाजा से बाहर निकल आई। रात हो चुकी थी। वो अपनी कार की तरफ बढ़ी। वो बदरू औरत को देख नहीं सकती थी। अगर देख सकती तो उसे बदरू औरत उसकी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी साफ नजर आ जाती, मगर वो उसे नहीं देख सकती थी। रुखसाना घबराई हुई थी। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई मगर गाड़ी स्टार्ट न हुई। बदरू औरत कार के पास खड़ी बड़े गौर से रुखसाना को कार स्टार्ट करने की कोशिश करते देख रही थी। बदरू औरत की तिलिस्मे हिस्स ने उसे खबरदार कर दिया था कि जिस सुनहरी मौका की उसे तलाश थी वो मौका उसे मिलने वाला है। बदरू औरत अपनी नजरें रुखसाना से नहीं हटा रही थी। जब कार स्टार्ट ना हुई तो रुखसाना गाड़ी से निकलकर बोनट के पास आई। उसने बोनट को ऊपर उठाया और इंजन में किसी प्लग को ठीक करने लगी। फिर उसने बोनट को नीचे गिराया तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो अपनी उंगली को देखने लगी। इत्तेफाक से रुखसाना की उंगली बोनट गिराते वक्त उसके अंदर आ गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। बदरू औरत ने इस मंजर को देखा तो उसके हलक से खुशी की चीख निकल गई जिसको रुखसाना न सुन सकी। वो इसी सुनहरी मौका का इंतजार कर रही थी जो अब उसे मुयस्सर आ गया था। रुखसाना की उंगली से खून बह रहा था। वो उसको दबाए गाड़ी में बैठने लगी तो बदरू औरत ने एक मंत्र पढ़कर फूंका और वो रुखसाना के खून के ज़रात में मिलकर उसके जिस्म में हलोल कर गई। गाड़ी में बैठे बैठे रुखसाना को एक झटका सा लगा। एक लम्हे के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में उड़ रही है। उसने आंखें बंद कर लीं।
वो यही समझी कि उसे अचानक चक्कर आ गया था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे अपना सर बोझल महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। उसने अपने आप से कहा, ये मुझे क्या हो गया है? लेकिन वो खुद भी इसका जवाब ना दे सकी। उसे लगा कि उसके जवाब देने की ताकत खत्म हो चुकी है। उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। रुखसाना शॉपिंग सेंटर की पार्किंग से गाड़ी निकालकर उसका मोड़ काटकर मॉल पर आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी जगह कोई गैबी हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग को इधर उधर हरकत दे रहा है। उसने सोचना चाहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर उसके सोचने समझने की सलाहियत भी उस जवाब दे गई थी, जैसे वो किसी दूसरे के कब्जे में थी और उसी के इशारे पर काम कर रही थी। वो चौक आ गया जहां से उसके घर को रास्ता जाता था। रुखसाना ने उस तरफ मुड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथों ने स्टीयरिंग को बाएं जाने मोड़ा और वो उस सड़क पर आ गई जो इमरान के बंगले को जाती थी। उस वक्त इमरान खाना खाने के बाद ड्राइंग रूम में अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने रुखसाना खड़ी थी। अरे रुखसाना, तुम इस वक्त खैरियत तो है? उसने हैरान होकर पूछा। रुखसाना ने धीमी आवाज में कहा, तुमसे मिलने को जी चाहा आ गई। अरे आओ आओ। इमरान ये कहकर रुखसाना को लेकर अंदर आ गया। वो उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। इतनी बेतकल्लुफी से और इतने करीब रुखसाना उसकी मंगेतर होने के बावजूद नहीं बैठी थी। इमरान को किसी कदर हैरानी जरूर हुई, मगर उसने कोई ख्याल ना किया। क्या पियोगी? उसने रुखसाना से पूछा। रुखसाना ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं। मुझे अपने कमरा नहीं दिखाओगे? तुमने नया शेल्फ खरीदा है, वो मैं देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, आओ। इमरान रुखसाना को अपने स्टडी रूम में ले गया। छोटा सा कमरा था जो किताबों से भरा हुआ था। एक शेल्फ सबसे अलग नजर आ रहा था। उस पर हाथी दांत की पिचकारी हुई थी। ये देखो वो शेल्फ, पसंद आया तुम्हें? इमरान ने पूछा। रुखसाना ने शेल्फ पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छा है, और वो कुर्सी पर बैठ गई। इमरान भी उसके पास बैठ गया। रुखसाना ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, अब तो किसी बदरू ने तुम्हें तंग नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, इमरान बोला। जब से मैंने बाजू पर तवीज बांधा है, बदरू दफा हो गई है। रुखसाना के हलक से एक अजीब सी गुर्राहट की दबी हुई आवाज निकली। उसने कहा, रात को सोने से पहले ये तावीज उतार दिया करो। इतना ज्यादा तावीज बांधना भी ठीक नहीं है। इमरान बोला, ये तुम क्या कह रही हो रुखसाना? तुम्हें मालूम नहीं कि अगर मैंने एक लम्हे के लिए भी तावीज उतारा तो वो बदरू मुझ पर हमला करके मुझे अपने कब्जे में कर लेगी। रुखसाना उठ खड़ी हुई, कहने लगी, मैं जाती हूँ। इमरान को ताज्जुब हो रहा था कि ये रुखसाना को आज क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ये तो कभी वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके दिलो दिमाग पर बदरू का कब्जा हो चुका है और जो बदरू कहती है वही वो बोल रही है। रुखसाना चली गई। इमरान ख्यालात में उलझा हुआ अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि कहीं रुखसाना ने कोई नशा तो नहीं किया हुआ, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं थी। कुछ देर के बाद इमरान भी बत्ती बुझाकर सो गया। रुखसाना गाड़ी चलाती माल रोड पर आ गई। अब उसकी सोचने समझने की रही सही सलाहियत भी सल्ब हो गई थी और उसके अंदर बैठी हुई बदरू औरत उसे अहकामात दे रही थी। बदरू औरत ने कहा, तुम थोड़ी देर बाद इमरान के बेडरूम में जाओगी और उसके बाजू पर बंधा हुआ तावीज उतार कर ले आओगी। रुखसाना के होंठों से अपने आप निकल गया, मैं ऐसा ही करूंगी। बदरू औरत ने रुखसाना के जहन में बैठे बैठे कहा, तुम 1 घंटा शहर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहो। और रुखसाना ने अपनी गाड़ी को शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर डाल दिया। वो शहर से दूर निकल गई। उसके बाद शहर के गिर्द जो सड़क बनी हुई थी उस पर आ गई। रात गहरी होती जा रही थी और सड़क अंधेरे में खाली और सुनसान हो रही थी। रुखसाना 1 घंटे तक उस सड़क पर शहर के गिर्द चक्कर लगाती रही। फिर बदरू औरत ने उससे कहा, अब इमरान के बंगले की तरफ चलो। रुखसाना एक बार फिर बदरू औरत के हुक्म पर अमल करती हुई इमरान के बंगले पर आ गई। उसने बदरू औरत ही के इशारे पर गाड़ी बंगले के अकब में उस जगह खड़ी की जिस तरफ इमरान के बेडरूम की खिड़की थी। इमरान के बेडरूम की खिड़की बंद थी। बदरू औरत ने उसे हुक्म दिया, गाड़ी से निकलकर बेडरूम की खिड़की में से अंदर जाओ। तुम बंद खिड़की में से गुजर जाओगी। इमरान गहरी नींद सो रहा है। तुम्हें उसकी साइड टेबल पर एक कैंची पड़ी हुई मिलेगी। वो कैंची लेकर इमरान के बाजू पर बंधे हुए तावीज का धागा काट डालो और तावीज उठाकर यहाँ ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। रुखसाना एक ऐसे इंसान की तरह जिस पर किसी ने जादू कर रखा हो इमरान के बेडरूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की के पास जाते ही वो खुद ब खुद जमीन से 3-4 फीट बुलंद हो गई। फिर वो उसी तरह बंद खिड़की की तरफ बढ़ी और उसमें से गुजर गई। अब वो इमरान के बेडरूम में थी। कमरे में अंधेरा था मगर रुखसाना अंधेरे में सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि इमरान के पलंग के पास जो छोटा सा साइड टेबल है उस पर एक कैंची पड़ी है। रुखसाना ने कैंची उठा ली और इमरान की तरफ बढ़ी। इमरान बिस्तर पर इस तरह सो रहा था कि उसका वो बाजू जिस पर तावीज बंधा हुआ था उसके जिस्म के नीचे आया हुआ था। रुखसाना एक खामोश मुजस्समे की तरह उसी जगह खड़ी रही। कुछ देर के बाद इमरान ने करवट बदली। उसका तावीज वाला बाजू ऊपर आ गया। इमरान सिर्फ बनियान पाजामा पहने सो रहा था। उसके नंगे बाजू पर बंधा हुआ तावीज साफ नजर आ रहा था। उस वक्त बदरू रुखसाना के पास नहीं थी, लेकिन रुखसाना के दिमाग पर जरूर उसका कब्जा था और बदरू औरत बेडरूम के बाहर गाड़ी के पास खड़ी
उसे अपने इशारों पर चला रही थी। वो अल्लाह के पाक नाम वाले तावीज़ के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकती थी, इसलिए वो खुद पीछे रही थी। उसने रुखसाना के दिमाग में सरगोशी की, कैंची से तावीज़ काट कर मेरे पास ले आओ। रुखसाना बदरू के तिलिस्मी असर में थी। उसने वही किया जो बदरू औरत उसे कह रही थी। उसने कैंची आगे बढ़ाई और बड़ी एहतियात के साथ इमरान के बाजू पर बंधे हुए तावीज़ का धागा काट दिया। ऐन उस वक्त रुखसाना के जहन में बदरू की सरगोशी की आवाज़ आई, तावीज़ को उठाकर अपने पर्स में रख लो। रुखसाना ने तावीज़ उठाया और उसे अपने पर्स में रख लिया। बदरू ने सरगोशी की, आप खिड़की के रास्ते बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। रुखसाना पलटकर खिड़की की तरफ आई। खिड़की अगरचे बंद थी, मगर वो बंद खिड़की में से बाहर निकल गई। उसकी गाड़ी दरख्त के नीचे अंधेरे में खड़ी थी। रुखसाना आहिस्ता आहिस्ता चलती जैसे ख्वाब में चल रही है। गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। बदरू औरत गाड़ी के ऊपर काफ़ी बुलंदी पर दरख्त पर मौजूद थी। उसने सरगोशी में रुखसाना को हुक्म दिया, गाड़ी लेकर दरिया की तरफ चलो। रुखसाना ने गाड़ी स्टार्ट की और दरियाए रावी की तरफ चल पड़ी। बदरू औरत गाड़ी के ऊपर काफ़ी बुलंदी पर साथ साथ परवाज कर रही थी। चूंकि अल्लाह के नाम वाला तावीज़ रुखसाना के पर्स में था, इसलिए वो रुखसाना के करीब नहीं जा सकती थी। रुखसाना के दिमाग पर बदरू औरत के असीबी असरात का कब्जा था। वो उसे उसकी मर्जी के मुताबिक चला रही थी। गाड़ी जब दरिया के पुल पर आ गई तो बदरू औरत ने रुखसाना को हुक्म दिया, गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दो। रुखसाना ने गाड़ी पुल की एक जानिब जंगले के पास खड़ी कर दी। बदरू औरत ने उसके जहन में सरगोशी की, अब पर्स में से तावीज़ निकालकर दरिया में डाल दो। रुखसाना को कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या कर रही है और कहाँ पर है। उसने पर्स खोलकर उसमें से तावीज़ निकाला और उसे दरिया में डाल दिया। जैसे ही तावीज़ दरिया की लहरों में गुम हुआ, बदरू औरत तेजी से नीचे आ गई और रुखसाना के जहन में सरगोशी में कहा, तुम यहाँ से वापस उसी शॉपिंग प्लाजा के बाहर जाकर गाड़ी खड़ी करोगी जहाँ से तुम चली थी। रुखसाना ने गाड़ी स्टार्ट की और पुल पर से गाड़ी को मोड़कर अपना रुख शहर की तरफ कर लिया। वो शहर की जगमगाती सड़कों पर इस तरह गाड़ी लिए चली जा रही थी जैसे बेहोशी के आलम में गाड़ी चला रही हो। वो माल रोड पर आ गई और फिर उसने गाड़ी शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में जाकर उसी जगह खड़ी कर दी जहां से उसे बदरू ने अपने कब्जे में किया था। अचानक रुखसाना को एक झटका सा लगा और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो गाड़ी में बैठी है और स्टीयरिंग पर सर रखे जैसे गहरी नींद सो रही थी। उसने चौंक कर देखा, वो उसी शॉपिंग प्लाजा के बाहर पार्किंग में है जहां उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसने घड़ी पर वक्त देखा, वो ठीक 9:15 बजे रात शॉपिंग प्लाजा से बाहर निकली थी और अब 9:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि इसका मतलब है वो 15 मिनट तक सोई रही है। वो बड़ी हैरान हुई थी कि आखिर उसे स्टीयरिंग पर सर रखे नींद कैसे आ गई। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और उसने बोनट उठाकर इंजन को ठीक किया था और बोनट गिराते वक्त उसकी उंगली जख्मी हो गई थी। उसने अपनी उंगली को देखा, उंगली पर एक जगह खून जमा हुआ था। उसने इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट हो गया। रुखसाना ने गाड़ी आगे बढ़ाई और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि बदरू औरत उसके जिस्म में दाखिल होकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती इमरान के बेडरूम में ले गई थी, जहां रुखसाना ने बदरू औरत के तिलिस्मी असर के तहत उसका तावीज़ उतारकर बदरू औरत के कहने के मुताबिक दरियाए रावी में बहा दिया था। वो यही समझ रही थी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और फिर वो स्टीयरिंग पर सर रखकर सो गई थी और 15 मिनट तक सोई रही थी। बदरू औरत ने उससे 15 मिनट में जो कुछ करना था कर दिया था और रुखसाना को खबर तक नहीं हुई थी कि इस दौरान उसने इमरान के बेडरूम में जाकर उसका तावीज़ उतारकर दरिया में बहा दिया था। उसे ये भी याद नहीं था कि इससे पहले वो इमरान के बंगले में उसके ड्राइंग रूम में भी जाकर उसे मिली थी और उसके बाजू से तावीज़ उतरवाने में नाकाम रही थी। इस काम में 15 मिनट गुजरे थे या 2 घंटे गुजरे थे। ये तमाम का तमाम वक्त जैसे उसकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था। उसका रुखसाना की ज़िंदगी से जैसे कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा था। रुखसाना को एक लम्हे के लिए भी किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। वो यही समझ रही थी कि वो शॉपिंग प्लाजा में शॉपिंग की गर्ज से आई थी। वापसी पर उसकी गाड़ी में कोई नुक्स पैदा हो गया। उसने नुक्स दूर करने की कोशिश की और फिर उसे यही याद था कि वो स्टीयरिंग पर सर रखकर सो गई थी और फिर 15 मिनट बाद उसकी आंख खुली। उसने इंजन स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गया और अब वो वापस अपने घर को जा रही थी। घर आकर उसने खाना खाया और बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेटकर कुछ देर एक नावल का मुतालिया करती रही और उसके बाद बड़े इत्मीनान से सो गई। उसके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उसने इमरान का तावीज़ उतारकर उसे बदरू औरत के जाल में फंसा दिया है। इमरान को भी इल्म नहीं हो सका था कि सोते में किसी ने उसके बाजू पर बंधा हुआ वह तावीज़ जिसने उसे बदरू औरत के असेब से बचाया हुआ था उतार दिया है और अब वो बदरू औरत के रहमो करम पर है। वो उसी तरह गहरी नींद सो रहा था। उसके बेडरूम की बत्ती बुझी हुई थी, सिर्फ रोशनदान में से सितारों की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। बदरू औरत के लिए अब मैदान साफ था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।